میں نے جب جب بھی پکارا ہے رسول عربی، ایک آواز سی آئی ہے کہ ہم آتے ہیں، ایک آواز سی آئی ہے کہ ہم آتے ہیں توڑنے کے لیے۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اے نسیم سحری تو ہی بتا کچھ تعبیر، اے نسیم سحری تو ہی بتا کچھ تعبیر، خواب میں کیوں درو دیوار حرم آتے ہیں، خواب میں کیوں درو دیوار حرم آتے ہیں۔ مکتہ ملاحظہ فرمائیں۔ سن کے یہ بات زمین جھوم اٹھی اے اختر، سن کے یہ بات زمین جھوم اٹھی، سن کے یہ بات زمین جھوم اٹھی اے اختر، آج دنیا میں محمد کے قدم آتے ہیں۔ مشاعرے کا آغاز دوستو چاہتا ہوں کہ گووند گیت واحد کے کلام سے کر دیا جائے۔ ہندی کی نمائندگی مقامی کوی، مقامی شاعر، دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے مقامی شاعر اور کوی کی کتنی ستائش کرتے ہیں۔ مائک پر استقبال کیجئے گووند گیت واحد۔ ایک مطلع اور چند شعر سماعت ہو رہی ہیں۔ تمہاری جو بھی مشکل ہے اسے آسان کر دیں گے، تمہاری جو بھی مشکل ہے اسے آسان کر دیں گے، گووند جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بزم میں آؤ تمہیں سلطان کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہماری بزم میں آؤ تمہیں سلطان کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، ہماری بزم میں آؤ تمہیں سلطان کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، تمہاری بستیوں کو ایک دن شمشان کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، تمہاری بستیوں کو ایک دن شمشان کر دیں گے، تمہیں اپنی ترقی کی عمارت خود بنانی ہے، توجہ چاہوں، تمہیں اپنی ترقی کی عمارت خود بنانی ہے، نہ تم اس بھول میں رہنا کہ سب بھگوان کر دیں گے، تمہیں اپنی ترقی کی عمارت خود بنانی ہے، نہ تم اس بھول میں رہنا کہ سب بھگوان کر دیں گے، نہ تم اس بھول میں رہنا کہ سب بھگوان کر دیں گے، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، بنے ہیں آج وہی لوگ میری جان کے دشمن، بنے ہیں آج وہی لوگ میری جان کے دشمن، جو کہتے تھے تمہارے نام اپنی جان کر دیں گے۔ آئیے اب میں برہان پور کے شیرستان کے اس مہکتے ہوئے گلاب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کی خوشبوؤں سے جہان شعر معطر ہو رہا ہے۔ جناب ظہیر انصاری، ایک خوبصورت لب و لہجے کے خوش فکر شاعر، مائک پر استقبال کیجئے جناب ظہیر انصاری کا۔ مطلع غزل کا پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ روشنی کی بھیک مانگنے
روشنی کی بھیک مانگنے ظلمتوں کے غول آئیں گے. بھائی واہ. روشنی کی بھیک مانگنے ظلمتوں کے غول آئیں گے. ظلمتوں کے غول آئیں گے. ایک چراغ تو جلائے رکھ, ایک چراغ ہم جلائیں گے. بھائی بہت اچھے ذہیندار, سبحان اللہ, بہت خوب. ایک چراغ تو جلائے رکھ, اچھا ایک ہے. چراغ ہم جلائیں گے. حسن مطلب ملاحظہ کیجیے. ہم وفا نبھاتے آئے ہیں, ہم وفا نبھاتے جائیں گے. کیا کہیں؟ ہم وفا نبھاتے آئے ہیں, ہم وفا نبھاتے جائیں گے. ہم وفا نبھاتے جائیں گے. وہ کبھی ہمیں منائے گا, ہم کبھی اسے منائیں گے. وہ کبھی ہمیں منائے گا, ہم کبھی اسے منائیں گے. زندگی کی لذتوں سے جب خود کو بے مزہ وہ پائیں گے. زندگی کی لذتوں سے جب زندگی کی لذتوں سے جب خود کو بے مزہ وہ پائیں گے. خود کو بے مزہ وہ پائیں گے. دیکھ لینا گیت پھر میرے بارہا وہ گنگنائیں گے. دیکھ لینا گیت پھر میرے بارہا وہ گنگنائیں گے. ابتدائے عاشقی کہو, حد کہو جنون شوق کی. ابتدائے عاشقی کہو, حد کہو جنون شوق کی. حد کہو جنون شوق کی. ریت پر کسی کے نام کو خود لکھیں گے خود مٹائیں گے. ریت پر کسی کے نام کو خود لکھیں گے خود مٹائیں گے. مقطع ملاحظہ کیجیے. میری بات اور ہے ظہیر, میں انا کو پوجتا نہیں. میری بات اور ہے ظہیر, میں انا کو پوجتا نہیں. میں انا کو پوجتا نہیں. میں غریب میری دوستی وہ امیر کیا نبھائیں گے. تو کھنڈوا کی نمائندگی پورے ملک کے کل ہند مشاعروں میں کرنے والا نوجوان شاعر سفیان قاضی آج ہندوستان کے مشاعرے جس کے منتظر رہتے ہیں, ہندوستان کے تمام اردو چاہنے والے سامعین اس کا انتظار کیا کرتے ہیں. اہل سخن میں منفرد اس کا مقام ہے. سفیان قاضی غزلوں کی عظمت کا نام ہے. اہل سخن میں منفرد اس کا مقام ہے.
सुफियान काजी गजलों की अजमत का नाम है, लहजा है दिल फरेब तो अंदाज मोतबर, उस जाने बज़्म शेर को मेरा सलाम है। इस्तकबाल कीजिए आप अपने नुमाइंदा शायर सुफियान काजी। एक मतला एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है। क्या कह रहे हैं सुफियान? मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है, जमाना देखता है आंख से गंगा निकलती है। जमाना देखता है आंख से गंगा निकलती है, बड़ी मुश्किल से तकवे का असर इस दिल पे होता है। क्या कहने हैं? मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है, बड़ी मुश्किल से मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है, जमाना देखता है आंख से गंगा निकलती है, बड़ी मुश्किल से तकवे का असर इस दिल पे होता है, बड़ी मुश्किल से दिल से ख्वाहिशे दुनिया निकलती है। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। बड़ी मुश्किल से तकवे का असर इस दिल पे होता है, बड़ी मुश्किल से दिल से ख्वाहिशे दुनिया निकलती है। एक मतलब एक शेर और आपकी खिदमत में हाजिर है कि जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियां अब भी भाई देते हैं। जी शुक्रिया। के जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियां अब भी भाई देते हैं। हो खुश नसीब बहुत तुम के इस जमाने में, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियां अब भी भाई देते हैं। हो खुश नसीब बहुत तुम के इस जमाने में, तुम्हारे हाथ में बेटे कमाई देते हैं। जी शुक्रिया। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी या यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। और हजरत आपने देखा होगा कि अगर चिड़िया के बच्चे को, कौवे के बच्चे को या तोते के बच्चे को अगर इंसान छू देता है तो वो सब उसको मार देते हैं। मैंने उसके पीछे एक वजह तलाश करने की कोशिश की और उसी वक्त एक शेर जहन में आया। मैं समाप्त करें कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी या यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी या यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। एक और खंडवा के नुमाइंदा शायर जनाबे गौहर अंसारी साहब से इल्तमास करूंगा कि अपनी खूबसूरत शायरी से इस मुशायरे के हुस्न में इजाफा फरमाएं। जनाबे गौहर अंसारी माइक पर। एक मतला और 2-3 शेर। मतला अर्ज करता हूं कि शऊर व आगही के मरहले आवाज देते हैं, शऊर व आगही के मरहले आवाज देते हैं, किताबों से हुनर के रास्ते आवाज देते हैं। शऊर व आगही के मरहले आवाज देते हैं, किताबों से हुनर के रास्ते आवाज देते हैं, किताबों से हुनर के रास्ते आवाज देते हैं। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, अगर पीछे हटूं तो हौसले आवाज देते हैं। कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, अगर पीछे हटूं तो हौसले आवाज देते हैं, अगर पीछे हटूं तो हौसले आवाज देते हैं। झुका देती हैं सर चंगेजियां उस कौम के आगे, झुका देती हैं सर चंगेजियां उस कौम के आगे, जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं। झुका देती हैं सर चंगेजियां उस कौम के आगे, जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं, जिसे माँ की दुआ के
सिलसिले आवाज देते हैं। और मुलाजा फरमाया ये शेर बतौर खास कि जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं, मेरी रफ्तार शायद वक्त की रफ्तार से कम है। मेरी रफ्तार शायद वक्त की रफ्तार से कम है, कदम रखते ही घर में मसले आवाज देते हैं। मुलाजा फरमाया एक मतले के साथ 2-3 शेर के, नाबचार न बहती नदी से मिलता है, नाबचार न बहती नदी से मिलता है, मेरा मिजाजे सुखन कब किसी से मिलता है, मेरा मिजाजे सुखन कब किसी से मिलता है। और बतौर खास समात फरमाया ये शेर के, नजर नजर में भी होती हैं प्यार की बातें, नजर नजर में भी होती हैं प्यार की बातें, नजर नजर में भी कोई किसी से मिलता है, नजर नजर में भी होती हैं प्यार की बातें, नजर नजर में भी कोई किसी से मिलता है। और मुझे तलाश करो शेर की रगो पाए में, मुझे तलाश करो शेर की रगो पाए में, हूँ वो ख्याल जो दानिश्वरी से मिलता है। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले हमें रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बस, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एनी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। गजल में जात भी है और कायनात भी है।
हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। आइए ऐसी गजल जिसमें हमारी बात भी हो और तुम्हारी बात भी हो, जिसमें जिंदगी की संजीदा सच्चाइयों के साथ साथ सरशारी और सरमस्ती भी हो। ऐसी गजल के लिए जनाब नईम फराज का नाम लिया जाता है, जो अकोला से तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें माइक पर बुला रहा हूं। नईम फराज माइक पर। गजल का मतलब आपकी बागा और समातों के हवाले। कभी खुशबू लगाती है, कभी काजल लगाती है, कभी खुशबू लगाती है, कभी काजल लगाती है, जरूरत के तहत मेहंदी की वो पायल लगाती है, जरूरत के तहत मेहंदी की वो पायल लगाती है। और सियासत ऐसी देवी है जो अपने हर पुजारी के, सियासत ऐसी देवी है जो अपने हर पुजारी के, सियासत ऐसी देवी है जो अपने हर पुजारी के जबीं पे झूठे वादों का हंसी संदल लगाती है। मेरा ये शेर आपकी तमाम बाज़ौक़ समातों के हवाले। जवां बेटा मरा हो जिसका मुंसिफ के इशारे पर, जवां बेटा मरा हो जिसका मुंसिफ के इशारे पर, मुंसिफ के इशारे पर कई चक्कर अदालत के वही पागल लगाती है। जवां बेटा मरा हो जिसका मुंसिफ के इशारे पर कई चक्कर अदालत के वही पागल लगाती है। और उजाले सुबह के आंखों में उसकी डूब जाते हैं, उजाले सुबह के आंखों में उसकी डूब जाते हैं, आंखों में उसकी डूब जाते हैं। वो अपनी नरगिसी आंखों में जब काजल लगाती है। मतलब मुलाहिजा फरमाएं कि लकीरें खींचकर क्या क्या वो कागज पर बनाता है, लकीरें खींचकर क्या क्या वो कागज पर बनाता है। तेरा दीवाना तेरे हुस्न का पैकर बनाता है, तेरा दीवाना तेरे हुस्न का पैकर बनाता है। और बदलते वक्त ने उसका हंसी पेशा बदल डाला, बदलते वक्त ने उसका हंसी पेशा बदल डाला। जो कल फूलों का ताजिर था वो अब खंजर बनाता है, बदलते वक्त ने उसका हंसी पेशा बदल डाला। जो कल फूलों का ताजिर था वो अब खंजर बनाता है। और बिना गहनों के रुखसत हो गई लख्ते जिगर उसकी, बिना गहनों के रुखसत हो गई लख्ते जिगर उसकी, बिना गहनों के रुखसत हो गई लख्ते जिगर उसकी। अमीरों के लिए जो कीमती जेवर बनाता है, बिना गहनों के रुखसत हो गई लख्ते जिगर उसकी। अमीरों के लिए जो कीमती जेवर बनाता है। और चलो उस शख्स की हिम्मत की हम भी दाद ही दे लें, चलो उस शख्स की हिम्मत की हम भी दाद ही दे लें। समंदर के किनारे रेत का जो घर बनाता है, समंदर के किनारे रेत का जो घर बनाता है। और फराज उसके कदम को चूमने मंजिल नहीं आती, फराज उसके कदम को चूमने मंजिल नहीं आती। सफर के सिर्फ मंसूबे ही जो अक्सर बनाता है। अब आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मुशायरे का रंग बदला जाए। फनकार की आंखों से देखो तो हर एक भाषा रस भीनी है, शीरी है, बेशक बड़ी प्यारी है। और सिर्फ उर्दू जुबान ही से मोहब्बत नहीं हमको, हम अहले कलम हैं, हमें तो हिंदी भी प्यारी है। आइए हिंदी साहित्य के रचना संसार के सशक्त हस्ताक्षर भाई डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जी को माइक पर आमंत्रित किया जाए और उनकी सुसंस्कृत और खूबसूरत रचनाओं का रसास्वादन किया जाए। गजल का मतलब पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि सुबह सवेरे धूप सुहानी अच्छी लगती है, सुबह सवेरे धूप सुहानी अच्छी लगती है, और संग तुम्हारे ये रात सुहानी अच्छी लगती है। सुबह सवेरे धूप सुहानी अच्छी लगती है, और संग तुम्हारे ये रात सुहानी अच्छी लगती है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि अपनों को भी देखा मैंने गैरों को भी परखा है, अपनों को भी देखा मैंने गैरों को भी परखा है।
सबको मेरी ये नादानी अच्छी लगती है। अपनों को भी देखा मैंने, गैरों को भी परखा है, सबको मेरी ये नादानी अच्छी लगती है। और ये शेर खास मेरे नौजवान साथियों के लिए कि ऐश्वर्या हो या हो प्रीति, पर्दे पर ही भाती है। खास ध्यान चाहूंगा कि ऐश्वर्या हो या हो प्रीति, पर्दे पर ही भाती है, घर के भीतर घर की रानी अच्छी लगती है। और शेर समाज फरमाइए कि यादें उसकी बादल बनकर छाए दिल के अंबर पर, यादें उसकी बादल बनकर छाए दिल के अंबर पर, तब जो बरसे बरखा रानी अच्छी लगती है, तब जो बरसे बरखा रानी अच्छी लगती है। और ये शेर खास बहन वाजपेयी जी आपकी नजर करना चाहूंगा। आप जिस स्त्री जाति की नुमाइंदगी कर रही है, ये शेर उनके लिए कि हर युग में ही सीता माँ की अग्नि परीक्षा होती है, हर युग में ही सीता माँ की अग्नि परीक्षा होती है, हमको फिर भी राम कहानी अच्छी लगती है। हर युग में ही सीता माँ की अग्नि परीक्षा होती है, हमको फिर भी राम कहानी अच्छी लगती है। और आखिरी शेर देखिए कि कहता जा तू दिल की बातें इस महफिल में आए गणेश, मक्ते का शेर है, कहता जा तू दिल की बातें इस महफिल में आए गणेश, बातें तेरी तेरी जुबानी अच्छी लगती है। उर्दू शायरी की जुल्फों को बड़ी खूबसूरती से संवारा है, उर्दू गजल के खदोखाल को बहुत खूबी दिखा रहा है। और इसी सिलसिले की एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत कवि का नाम है देवेंद्र काफिर। करनाल में रहने वाले हैं, मुस्तकिल कयाम जनाब देवेंद्र काफिर बहुत ही खूबसूरत नमो लहजे के गजल के शायर भी है। उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बदले तो कल का रंग निखर आया इस तरह जैसे निखार आया हो ताजा गुलाब पर, और आवाज दे रही है तुम्हें दिल की धड़कने, आ जाओ अब के बंद है पूरे शबाब पर। एक कथा अर्ज कर दो कि मेरे घर में ही तो रहता है खुदा मुद्दत से, मेरे घर में ही तो रहता है खुदा मुद्दत से, राज अक्सर ये जमाने से छुपा लेता हूँ, कोई यूं ही ना आके देख ले खुदा मेरा, मैं हूँ काफिर सरे महफिल ये बता देता हूँ। मेरे घर में ही तो रहता है खुदा मुद्दत से, राज अक्सर ये जमाने से छुपा लेता हूँ, कोई यूं ही ना आके देख ले खुदा मेरा, मैं हूँ काफिर सरे महफिल ये बता देता हूँ। बहुत अच्छी चार मिसरे। मेरा अंदाज अलग है सबसे, मेरी आवाज अलग है सबसे, मेरा अंदाज अलग है सबसे, मेरी आवाज अलग है सबसे, पांव रख के जमीन पे उड़ता हूँ, मेरी परवाज अलग है सबसे। तो एक शेर आप लोगों के नाम करूंगा, आपकी नजर है कि अब मैं समझा ये नशा सा जनाब कैसा है, अब मैं समझा ये नशा सा जनाब कैसा है, तुम्हारे शहर का पानी शराब जैसा है। आइए हजरत, हमारे डाइस पर एक सच्चा खरा बेबाक और सीने में दहकती हुई आग रखने वाला शायर मौजूद है, जो हालात की भट्टी से कुंदन बनकर निकला और पूरे मुल्क के मुशायरों की जरूरत बन गया। जबलपुर के हवाले से अपने आंसुओं से दरिया की प्यास बुझाने का हौसला रखने वाले शायर का नाम है मन्नान फराज। अर्ज किया है कि सियासत, जंग, इंसानी मसाइल, सियासत, जंग, इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है। सियासत, जंग, इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है और नई तहजीब की उंगली पकड़कर गजल लहजे बदलती जा रही है। वाह 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 वाह। कि सियासत, जंग, इंसानी मसाइल हर एक सांचे में ढलती जा रही है और नई तहजीब की उंगली पकड़कर गजल लहजे बदलती जा रही है। हजरत एक मतला आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अर्ज किया है कि मस्जिद की बात कर, ना शिवालों की बात कर। जवाल साहब कि मस्जिद की बात कर,
نہ شیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نوالوں کی بات کر. شکریہ. حاضر کرتا ہوں.